حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں کے اوپر ہی ہمیں چلنا چاہیے. گولی ادھر کی چلے چاہے گولی ادھر کی چلے، مرتا ہمارا کشمیری بھائی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف کشمیر میں اگر کچھ دیا تو خون ریزی کی ہے. گجر کو پہاڑیوں سے لڑایا جا رہا ہے. ایک کو بتایا جاتا ہے، کبھی بتایا جاتا ہے کہ گجر ہی دیش بھکت ہے. کیا وقار ایچ بھٹی کوئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کرنے والے ہیں؟ سر ہماری کیا اوقات کہ ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر سکیں. اللہ نے مجھے اس ٹائم ایک راستہ دکھایا ہوا ہے کہ تم مظلوموں کی آواز بنو. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں جموں کشمیر میں ہیں، نیشن سے لے کے اسٹیٹ لیول پر، میں سب پہ لعنت بھیجتا ہوں. ہم جب مسجد میں جاتے ہیں نا تو لائن میں کون بادشاہ ہے، کون فقیر ہے، کون مزدور ہے، کون راجہ ہے، وہ نہیں دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں عاشق میر. جموں و کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سیاسی صورتحال کیا ہے، اور گزشتہ کچھ مہینوں سے تمام تر سیاسی جماعتیں اب عوام میں جانے لگی ہے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ آج ایک خاص مہمان جڑے ہیں جو نہ صرف جموں و کشمیر مشہور ہے بلکہ ملک ہندوستان میں بھی انہیں جانا جاتا ہے. ہم بات کرتے ہیں وقار ایچ بھٹی کی، جو کہ ایک سماجی کارکن ہے. وقار ایچ بھٹی صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس پروگرام میں. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر کی صورتحال، اگر سیاسی صورتحال کی بات کریں تو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو عاشق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے بولا کہ سیاسی جموں کشمیر کی سیاست کے اوپر آپ نے بات کی ہی ہے، تو جموں کشمیر میں سیاست کبھی ہوئی نہیں ہے. جموں کشمیر میں بزنس ہوا، تجارت ہوئی لوگوں کے خون سے. تو وہ پہلے بھی ہو رہی تھی، وہ آج بھی ہو رہی ہے. اور کیا پتہ بدقسمتی ہے ہمارے جموں کشمیر کے نوجوانوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی، یہ کب تک ہوتا رہے گا. کیونکہ ہمیں رہبر نہیں ملا. جو رہبر تھے کچھ جیلوں میں زندگیاں اپنی دے چکے ہیں، کچھ باہر شہید ہو گئے. اور جو رہبر بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ رہبر نہیں، وہ تجارت کرتے ہیں، وہ بزنس کرتے ہیں، وہ کشمیریوں کے خون کا سودا کرتے ہیں. کن کی بات آپ کر رہے ہیں؟ جنہوں نے راج کیا جموں کشمیر میں، ان میں سے سب ہیں. مجھے تو آج کوئی ایسا بندہ تو دکھتا نہیں ہے کہ جو کوئی نیا آیا ہے اور اس نے بولا ہو کہ ہم کشمیر کے لیے کچھ بہتر کریں گے. وہی لوگ ہیں آج. ہاں ایک بات ہے کہ نئی جماعتوں کے نام ضرور لے کے کچھ آئے ہیں. پرانی جماعتوں سے نئی جماعتوں میں نئے نام لے کے ضرور آئے ہیں، لیکن وہ وہی لوگ ہیں جو سطح میں رہ چکے ہیں، جو ان سرکاروں کے ساتھ منسٹر ایم ایل اے بن چکے ہیں. تو وہی لوگ ایک نئی جماعتیں، نیا نام، نیا رنگ لے کے آئے ہیں. نہیں ہم اچھے ہیں، ہمیں چنو، آپ ہمیں چنو کیونکہ ہم ہی جموں کشمیر کا بھلا کر سکتے ہیں. تو ایسے تو بہت ہیں جموں کشمیر میں. اور خاص کر اگر ہم کشمیر ویلی کی بات کریں تو وہاں تو ہمیشہ جماعتیں آتی آئی ہیں. جماعتیں بننی چاہیے، اس میں کوئی میں نہیں کہوں گا کہ جماعتیں نہیں بننی چاہیے، لیکن جماعتیں کون سی بننی چاہیے؟ کیا انہی لوگوں کی جنہوں نے آج دن تک رولز کیے، جو پاور میں رہتے ہیں اور وہی نام بدل کے پھر دوبارہ آ جاتے ہیں؟ اور جو اگر کوئی بات کرتا ہے سچ کی، حق کی، انصاف کی، ہیومن رائٹس کی، اس کے لیے کیا خالی جیل ہے، خالی گولی ہے؟ یہ ایسا نہیں چلے گا جموں کشمیر میں. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں کو، مڈل کلاس کو، لوور کلاس کو سامنے آنا چاہیے. اگر ہم جموں کشمیر میں اس وقت بی جے پی کا رول چل رہا ہے تو 2014 سے کہا جا رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تمام تر جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں ان پہ کام کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ ان پر کام واقعی میں ہو رہا ہے؟ بالکل ہو رہا ہے. ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اس سے بڑا بی جے پی کیا کر سکتی تھی جموں کشمیر کے لیے کہ عام نوجوان کشمیریوں کی شہادت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. گولی ادھر کی چلے چاہے گولی ادھر کی چلے، مرتا ہمارا کشمیری بھائی ہے، مرتا آپ کا اور ہمارا بھائی ہے. میں ہمیشہ سے ایک بات کرتے آیا ہوں کہ کشمیر میں ہر ایک مہینے میں 20 سے 30، کبھی کبھی 30 سے 50 بھی چلا جاتا ہے آنکڑا، ہمارے کشمیری نوجوان مرتے ہیں. اس میں ہر طبقے میں، چاہے وہ پولیس میں لے لو آپ، جو ہمارے نوجوان ہتھیار اٹھاتے ہیں ملٹنسی میں، ان کی بات کریں آپ. اس کے بعد جو کراس فائرنگ میں جن کو کہا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے، یا انکاؤنٹر میں کر کے مار دیا جاتا ہے، جیسے حیدر پورہ انکاؤنٹر کی میں یاد دلا دیتا ہوں آپ کو. تو اگر مان لیا جائے کہ کشمیر میں ہر مہینے 20، 30، 40، 50 نوجوان ایسے مرتے رہیں گے
ऐसे जान देते रहेंगे तो याद रखें आशिक साहब, आने वाले 10 साल के बाद कश्मीर में कोई नौजवान नहीं बचेगा। और मुझे नहीं पता कि इसके पीछे मकसद क्या है, और मैं तो कश्मीर के नौजवानों को, खासकर कश्मीर के नौजवानों को ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये जुल्म कश्मीर में है। मैं पीर पंजाल की भी बात कर सकता हूँ, चनाब वैली जम्मू की भी बात कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये किलिंग्स कश्मीर में हो रही हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा कश्मीर को तवज्जो दे रहा हूँ। तो कश्मीर में इस चीज़ को रोकना मेरी, आपकी, हम सब की जिम्मेवारी है। अगर हम बात करें कब तक वकार एच भट्टी यहाँ की सरकारों की मुखालफत करेंगे? कोई तो अच्छा काम किया होगा इन सरकारों ने, अगर हम 2014 से गिने या आज के दौर की बात करें, कोई तो अच्छा काम किया होगा, वो बताइए ना लोगों को, कोई तो अच्छा काम किया होगा। आप जर्नलिस्ट हैं, देखते हैं जम्मू में, घूमते हैं जम्मू में, पीर पंजाल में, चनाब वैली में, साउथ में, नॉर्थ में, श्रीनगर में, मुझे आप ही बता दीजिए कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ है। अगर मान जिस हिसाब से सरकार दावे कर रही है कि बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, यहाँ पर रोजगार दिया गया है, तामीर और तरक्की के हवाले से काम किया जा रहा है, क्यों वकार एच भट्टी इन बातों को नहीं लाते हैं सामने? क्यों खाली खामियां ही गिनते हैं? सर, ये सरकार इतनी नालायक सरकार रही है कि 65,000 डेली विज़र जम्मू कश्मीर में, ठंड में हो, गर्मी में हो, बारिश में हो, हर जगह उनको देखेंगे ना आप, तो दफ्तरों के बाहर बैनर्स पकड़े हुए अपना इंसाफ मांगते हैं। उनको तो दे दें पहले। ये इन्होंने किया क्या? इन्होंने सिर्फ कश्मीर में अगर कुछ दिया तो खून रेजी की है, ठीक है। जम्मू में अगर कुछ लाया है तो बाहर के रिलायंस के शॉप्स यहाँ लाए हैं, इससे ज़्यादा इन लोगों ने कुछ नहीं किया हुआ। तो ये तो सिर्फ मीडिया पे बताना कि हमने इतना रोज़गार दिया, इतने जॉब्स दिए, इतना डेवलप किया जम्मू कश्मीर को, सरासर गलत है, सरासर झूठ है। कोई ऐसा जम्मू कश्मीर का काम नहीं है जो इस सरकार ने किया है। हाँ, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक जम्मू कश्मीर की ये सरकार जो भाजपा की सरकार है, एक काम, क्योंकि यहाँ भी रूल्स चल रहा है, जो एलजी साहब हैं ये भी पहले भाजपा के थे और भाजपा ने ही इनको भेजा हुआ है। तो जो भी काम हाँ यहाँ जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, वो एक काम में मैं भाजपा की तारीफ़ ज़रूर करूँगा, जो ख़ासकर मुस्लिम में अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम को किस तरीके के साथ डिवाइड करना, वो किया इस टाइम ज़रूर जा रहा है। चाहे आप गुज्जर की बात करें, चाहे पहाड़ियों की बात करें, गुज्जर को पहाड़ियों से लड़ाया जा रहा है। एक को बताया जाता है, कभी बताया जाता है कि गुज्जर ही देशभक्त है, ये हमारा गुज्जर है। कभी बताया जाता है नहीं, पहाड़ों में जो थे वही असली देशभक्त थे, ये हमारे पहाड़ी हैं, ठीक है। कभी बताया जाता है कि नहीं, जो कश्मीरी हैं ये हमारे हैं। भाई मैं एक ही बात कहता हूँ, पहली बात, मैं तो सिर्फ आज दिन तक अपने मुसलमानों को समझाते समझाते ये थक गया हूँ कि हमारे लिए एक कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम एक नबी के उम्मती हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए रास्तों के ऊपर ही हमें चलना चाहिए। कास्टिज़म इस्लाम में बिल्कुल, इसको कभी भी कास्टिज़म, जो इस्लाम है, इस्लाम में क्या, इक्वालिटी, ठीक है ना। इस्लाम में सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी धर्मों में, हम किसी धर्म को छोटा बड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने धर्म की बात करूंगा, मैं किसी धर्म की बात नहीं करूंगा, बट अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में इक्वालिटी है। हम जब मस्जिद में जाते हैं ना, तो लाइन में कौन बादशाह है, कौन फ़कीर है, कौन मजदूर है, कौन राजा है, वो नहीं देखा जाता। जो पहले आएगा वो पहली लाइन में आएगा, जो बाद में आएगा वो बाद वाली लाइन में होगा। तो इसलिए जो यहाँ भाजपा कर रही है और जो हमारे लोग भाजपा के इस प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं और आपस में ही कहते हैं नहीं गुज्जर असली मुसलमान है, पहाड़ी असली मुसलमान है या कश्मीरी असली मुसलमान है, इन चीज़ों से प्लीज़ बचना चाहिए, नहीं तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। हमें यूनाइट रहना चाहिए, इत्तेहाद में रहना चाहिए। ये नहीं मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से लेके पूरे भारत तक और भारत से लेके पूरी दुनिया तक जिस तरीके के साथ मुसलमानों को तोड़ के, कभी कास्ट के नाम पे, कास्टिज्म के नाम पे, कभी मसलक पे नाम पे मुसलमानों को तोड़ा जाता है, ये चाहे अंग्रेज़ों की ले लो, चाहे आरएसएस की ले लो, यहूद की ले लो, एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इससे हमें बचना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम कहें तो यूपी में इलेक्शंस का बिगुल जो है वो बज गया है, इसके बाद शायद जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन होंगे। क्या वकार एच भट्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने वाले हैं? इस हवाले से बताइए। सर, हमारी क्या औकात कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर सकें? हम तो एक आम गरीब इंसान हैं, 3 टाइम का खाना भी अगर हमें मिल जाता तो शुक्र रब का करते हैं। हम कहाँ पॉलिटिकल पार्टी। कई लोग कह रहे हैं कि कल को इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सर, लोगों के कहने के मुताबिक तो वकार एच भट्टी
आज ये कर रहा है, कल प्रधानमंत्री बन जाएगा, तो लोगों का कहने की बात है ना, मेरे अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में जो लिखा होगा मैं वही बनूंगा। अल्लाह ने मुझे इस टाइम एक रास्ता दिखाया हुआ है कि तुम मुस्लिमों की आवाज़ बनो, तुम अपने जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ बनो, मजलूमों की आवाज़ बनो, तुम अपने जम्मू कश्मीर को इत्तेहाद और एकता में कैसे एकता रहे, जम्मू कश्मीर ज़िंदा कैसे रहे, जम्मू कश्मीर की पहचान ज़िंदा कैसे रहे, जम्मू कश्मीर कैसे इत्तेहाद में रहे, उस पर काम करो। तो अल्लाह ने मुझे जो रास्ता दिया है मैं उस पर चल रहा हूँ। रही इलेक्शन की बात, पॉलिटिकल पार्टी तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करूँगा या मैं किसी में जाऊँगा। मैं पहले ही बोलता हूँ, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ जम्मू कश्मीर में हैं, नेशन से लेके स्टेट लेवल पर, मैं सब पे लानत भेजता हूँ। इंडिपेंडेंट लड़ने जा रहे क्या इलेक्शन? सर मैंने बोला ना, इंडिपेंडेंट की आप बात करें या मुझे अपनी को पार्टी की आप बात कर देंगे, ये जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर का नौजवान, जम्मू कश्मीर की बहन, जम्मू कश्मीर का बुजुर्ग, जिस दिन वकारज भट्टी या वकारज भट्टी के जो साथी हैं, जिस दिन वो कहेंगे 100% कि नहीं हमें आपकी ज़रूरत है, आप आओ, हम अपनी ज़िंदगियों भी कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। तो छोड़िए, वकार एच भट्टी साहब, जिन ताकतों के खिलाफ आज आप बात कर रहे हैं, बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, नहीं लग रहा है आपको कि कश्मीर में बीजेपी अब स्ट्रांग होती जा रही है? आपको आगे आना चाहिए, खुलेआम ऐलान करिए ना, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, क्यों लोगों को उलझा रहे हैं? नहीं, मैंने बोला है, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर का नौजवान, बुजुर्ग, माँ बहन, अगर उनको लगता है कि बीजेपी से हमें ख़तरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ख़तरा है, पीडीपी अपनी पार्टी, पीसी, पता नहीं कौन कौन सी और भी हैं 4-5, अगर इन लोगों से ख़तरा है, नहीं वकारज भट्टी जैसे, या वकारज भट्टी या वो जो हमारे जेलों में बंद हैं, इन लोगों की हमें ज़रूरत है, ये आके हमें रास्ता दिखाएं, तो हम हर जगह तैयार हैं उनके लिए। बट अवाम से बाहर वकारज भट्टी ना गया है ना जाएगा, मरना पसंद करेगा ज़रूर। बिल्कुल, जिस हिसाब से हमने कल देखा कि कई एक जगहों पर, अगर हम कश्मीर खिते की बात करें, पीएम सिक्योरिटी मामले के लेकर काफ़ी जगहों पर प्रोटेस्ट हुए। कश्मीर से जितने भी बीजेपी के लीडरान हैं, उन्होंने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया। क्या लग रहा है आपको, बीजेपी कहीं कश्मीर में स्ट्रांग होती जा रही है? सुनिए, वो जो कश्मीर में आपने देखे होंगे प्रोटेस्ट करते हुए, वो बेचारों को 500 रुपया मिला होगा, कल का बेचारों का मुर्गा आया होगा, ठंड है इस टाइम, तो बेचारों को बोला भैया आज का मुर्गा हम दे देंगे, तुम कल ना क्या करो कि कैंडल मार्च करो, प्रोटेस्ट करो, तो मुर्गा एक एक घर में भेजा होगा। तो उस मुर्गे के चक्कर में बेचारे रोडों में आए थे, और क्या करेंगे बेचारे गरीब। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी का मसला था, वहाँ पर उनके कहने के मुताबिक उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था। क्या जम्मू जनाब, वो वज़ीर आज़म जो कहता है कि पूरी दुनिया 56 इंच के सीने से डरती है, वो कुछ किसानों बेचारे गरीबों से डर गया? सब फेक है, सब झूठ है, ये अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। और कहीं ना कहीं ये क्या चाहते थे कि पंजाब में एक दलित सीएम है, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक दलित सीएम क्यों बन गया, एक सिख सीएम क्यों बन गया। ये गरीबों को, सिखों को, दलितों को पसंद नहीं करते, मुसलमानों को तो करते ही नहीं है, उनको भी नहीं करते। तो एक मगोठा लेके मोदी जी ना कहीं इधर उधर जाते रहते हैं। तो बीजेपी ना असली का चेहरा क्या है कि वो एक पब्लिसिटी करना था। अब देखिए ना, 4 दिन से मीडिया में वही चल रहा है। तो अगर ये ना करते, और सबसे बड़ी बात है, मोदी साहब की मैं एक तारीफ़ ज़रूर करता हूँ। अगर भारत में मोदी जी इतने सक्सेस है ना, तो उनको पता कि मीडिया को अपने साथ लाना, मीडिया में कैसे आना है, किस तरीके से मीडिया कवरेज लेनी है, वो बेहतरीन जानते हैं। और इंडिया में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं जानता, इसलिए इंडिया के तमाम लीडर नाकामयाब हैं और नरेंद्र मोदी कामयाब है। और ये नहीं कि इंडिया की, पूरी दुनिया में मोदी जी जहाँ भी जाएंगे मीडिया कैमरा साथ रहेगा, कैसे फ़ोटो बनाना है, कैसे नहीं बनाना। टेढ़ा अगर टेढ़ी शक्ल भी आ जाएगी ना मोदी साहब की, तो समझ लो उस मीडिया वाले की हालत ख़राब है। आखिर पर वकार एच भट्टी, कल को अगर सच में आपको लोग मजबूर करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है आपको, तो किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे? क्या क्या मसाइल आप, अगर कभी मुझे अवाम ने कहा कि भट्टी साहब आइए इलेक्शन लड़िए, तो आप मुद्दा क्या, आपने बोला मुद्दा क्या होगा, मेरे पास एक ही मुद्दा है, मसला है कश्मीर, ह्यूमन राइट्स, बस यही मुद्दा। जब तक मसले कश्मीर को हल नहीं करेंगे, ह्यूमन राइट्स बंद नहीं करेंगे, कैदियों को रिलीज नहीं करेंगे, उससे बाद कोई मुद्दा आगे बड़ा बंदा नहीं है। यही मुद्दे हैं सबसे पहले। और जो मुद्दे आप पानी, बिजली, इन चीज़ों के मुद्दे करते हो, सर ये क्या है, ये तो कोई भी एमएलए बनेगा तो उसके पास फंड तो आएगी, वो तो बना ही देगा। बट असली मुद्दा है, अगर आप रहबर और लीडर बनना चाहते हो तो आपको मसले कश्मीर पर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मसला कश्मीर क्या है, मसले कश्मीर का मतलब कि हमारी रियासत का एक टुकड़ा पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास है। तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक रहे, एक जगह हो जाए।
اور کوئی لائن آف کنٹرول نہ آئے, کہیں پاسپورٹ ویزے کی ہمیں ضرورت ادھر ادھر جانے میں نہ ہو. اس لیے مسئلے کشمیر کے لیے آپ کو پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم پاکستان سے بات نہیں کریں گے, پاکستان آتنکواد بھیجتا ہے, تو بھیا کب تک ہم مرتے رہیں گے, ہے نا. اگر پاکستان یہ سب کچھ کرتا ہے جموں کشمیر میں, تو پھر دو ہی کام ہے, یا آپ پاکستان کو روکیں اگر آپ سے رک رہا ہے, اگر نہیں رک رہا تو بات کریں, اگر بات سے بھی نہیں رک رہا تو یدھ کریں, جو جیتا وہی سکندر. بالکل, بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, یہ تھے وقار ایچ بھٹی, جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ اگر جموں کشمیر میں امن رکھنا ہے تو ضرور پاکستان سے بات کرنی ہے. بہت بہت شکریہ. ناصر کاشرو کے ساتھ عاشق میر, کشمیر کراؤن کے لیے.